Okay, okay. We always talk about today. We are going to understand the providers. Okay, we always talk about the value, service, and factory, but there are other thing also like cons and the value. These two, factory and service, are we always talk, but we don't talk about the value and cons. Okay, so when we use the value and when we use the cons, so constant is the provider which will remain the constant for the throughout the application. Means once assigned, you cannot, no one can change that. So what things you should put in the cons provider? So the easiest answer is the URL. Okay, these URL should be part of the my cons operator. And the second thing is my specific some values. If you want to share with on all pages, you should make this as a constant. And the big thing with the constant is it does not apply the watch on that, and it always remains the same. At the same time, there is one more provider called the value. Okay, value can be shared with all the throughout the AngularJS, but it can hold only the values. Like it can hold the object also, but and it can hold the primitive JavaScript data type also. So we can utilize that also. We for everything we don't require to write the what we say, we don't require write the factory or the service. And when we want to utilize the functionality, that time we only go for the service. Okay, and when we want to share a big object or there is logic behind to create that object also, then we go for the factory. That's it, the simple concept of the provider. Okay, so if I want to create the provider, it's not at all big deal. Okay, so what we have to do, we have to create one more component here, and I will say new folder, and I will say constant. Okay, constants. And in this constant, I'm going to put the all constant here. Okay, add new JavaScript, and I will add my application name is what we have provided for service. What is the name? Okay, I have not created service here. In this project I don't have service. In last time we had created service, right? One second, so let me open the constant here. So to do create the constant, we just need to create uh one file constant.js. Okay, and you can put like app.constant equal to whatever the variable name you have to put. Okay, constant name, and you can put any data here. Okay, whatever the data you want to share. And if you want to create the multiple constant, you have to create like this: data 1, okay, and data 2. So these will all become the constant for you, data 2, and you can inject that anywhere in your component, controller, factory, anywhere. Okay, so if I want to inject that in my controller, I can easily inject this here. So I want to inject data 1. Okay, and so I have to create here data 1 also, data 1, and it will automatically come here in the values. Okay, so this is the one thing which is the constant is. Huh? So I told you now there are three ways to do this. So this is the way which we use. So whenever we create the controller component, we try to utilize this way. We have to write it, so it is dependency injection. Okay, and instead of writing directly here, we are writing in like this way always. Okay, so this you have to mug, then you can mug also. Slowly you will understand that, because for in your experience, it's no one is going to ask you where why you are writing 2 times, but for your experience you should understand
why we are writing two times? Because if we'll do the minification of the file, this data one will become the ABC, and it will not able to understand. I have to inject the data one only. So by doing this way, it is injecting the data one. Okay. So if you will see the minified file, now you will might able to understand this. Okay, so if data one I have to inject, I can inject like this. This is the key thing. Okay, and the second topic comes here, constant and values also. So to create the values, what we have to do, app dot value, and then you can set the any value well. Okay, and I can create value one also, and I can add 10. Okay, and I can inject that, but value can get changed by anyone, and one place it change, you can change, you will get the reflect on the any other places. But to reach that, you always have to utilize the power of the injection only. Like, you cannot directly get this value, you have to use the anywhere where you are writing the component or directives. Component or directives, I will show you in components also. What we have to do, we have to inject this here. So if I will use this way, so I might have used the injector and I have called like this, so I have to inject this way also. So there are n number of way to do the same thing, but you have to know, you should know the all way. अभी शुरुआत में डिफॉल्ट है वो, बाद उसको डायनेमिक करना होगा उसका, you can change the data in other place. Whenever you will use that, it will impact as the new data, right? So this is the key. And service we write for uh, service we write for functionality. That's the key. You have to understand the difference. Like you create uh, in other language constant, okay, and properties. So these values are the properties which is accessible and everywhere, global properties. Okay, so that is the Angular JS way. Okay, so sir, factories we return object, right? But it is quite similar to services also. Everything is similar, everything is the provider. They have given the some way standardization for this, to where to use what. Okay, so if you will see, suppose we have added anything in डॉलर रूट स्कोप और हम लोग उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? तो उसमें क्या होता है ना, एक डॉलर रूट करके वेरिएबल होता है जो जिसे हमको CTRL लिखना पड़ता है। यहाँ पे हेडर का काम बनाया था, कॉन्स कंट्रोलर हेडर कंपोनेंट में मेरा नहीं हेडर का डायरेक्टिव्स में, हेडर कंपोनेंट में हमने HTML बनाया था, राइट? और यहाँ पे हम लोग कोई तो भी डॉलर रूट स्कोप की वैल्यू ले रहे थे इंजेक्टर में करके, यहाँ पे फैक्स में। तो अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मेरे को जैसे डॉलर CTRL होता है, वैसे यहाँ पे डॉलर रूट होता है, जो डॉलर रूट स्कोप में वैल्यू कोई भी ऐड की है तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, बाइंड कर देगा। तो कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं पता है क्या, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर्विस वैल्यू और प्रोवाइड एनी प्रोवाइडर, दे यूज दिस डॉलर रूट स्कोप, जिसमें वो कोई भी वैल्यू डालते, क्योंकि डॉलर रूट स्कोप इज ग्लोबल, तो उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा वो भी एक्ट करेगी ग्लोबल जैसे। लेकिन वी शुड नॉट यूज द डॉलर रूट स्कोप टू ऐड द वैल्यूज। Instead of always we should use the either constant or values, so it is very easy to debug also, and we understand that much better way। ठीक है ना? तो लेकिन या फिर आपको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए किसी भी चीज को। टेक्निकली तो बेस्ट वे इज ब्रॉडकास्ट, कि मेरा यहाँ पे मैंने कोई चीज चेंज की और मैं उसको इवेंट को जहाँ हैंडल करना है वहां पे मैं उस इवेंट को हैंडल करूँ, और उसके अंदर कोई एक लोकल वेरिएबल बनाऊँ जो उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो ब्रॉडकास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन वो भी हमारे को है ना जनरली सुनने में कम ही आता है, लोग है ना उसकी जगह रूट स्कोप वगैरह को ज़्यादा यूज कर लेते हैं, क्योंकि रूट स्कोप के ऊपर हमारी वॉच लगती है। याद रखना, किसी भी प्रोवाइडर के ऊपर हमारी डायरेक्टली वॉच नहीं लगती। द की डिफरेंस बिटवीन एडिंग द वैल्यू हियर और सर्विस किसी भी प्रोवाइडर में,
कि डॉलर बहुत जो है ना वो मेरी सर्विस में नहीं लगती, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, जब भी सर्विस में तो चेंज हो जाएगा नई वैल्यू आई, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मेरे को कोई ना कोई दूसरी वॉच अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, सर्विस बनाने की बजाय डॉलर रूल स्कोप में रखते हैं। तो उससे अच्छा तरीका क्या है, सर्विस में रखो चलेगा लेकिन ब्रॉडकास्ट करो। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर इवेंट है वो वहां से सर्विस से अगेन उठा लेगा और उठा के वैल्यू आपकी नॉर्मल कंट्रोलर को दे देगा, कंट्रोलर विल बाइंड द वैल्यू। ये पूरा इसका वर्क फ्लो होता है, ठीक है ना, ये समझने आ गया। तो ये हमारा है ना की एस्पेक्ट है हमारा प्रोवाइडर्स का, हमारा सर्विस फैक्ट्री का। और एग्जांपल तो बाकी सारे एग्जांपल तो हमारे अगर फैक्ट्री का भी बना है, हम लोग इसमें बनाया था क्या लास्ट टाइम फैक्ट्री का, नहीं। तो हमारा फैक्ट्री का एग्जांपल में हमारा सेम फंक्शनैलिटी, फैक्ट्री और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ओके पेस्ट, क्योंकि ये ऑल आर द इनबिल्ट आर द सर्विस ओनली। तो अगर मैं इसको फैक्ट्री लिखूंगा FACTORY फैक्ट्री, ओके। और मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री में हम लोग हमेशा हमेशा क्या रिटर्न करते हैं, ये मेरे को इसमें कुछ चाहिए नहीं, ओके ठीक है। और मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को रिटर्न करना है RETURN, रिटर्न न्यू कोई भी ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी ये बना सकता हूँ अभी ऑब्जेक्ट, और इसको मैं फैक्ट्री लिखूंगा ओके। दिस इज ओनली द डिफरेंस विच इज यूज इन द, और आप इसके अंदर $HTTP से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, पूरा कैलकुलेशन होने के बाद रिटर्न करो। दिस ऑल थिंग वी कैन डू, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ सर्विस फैक्ट्री प्रोवाइडर। इसको आप एक एक घर पे एग्जांपल बनाना। इसमें अभी अगर मेरे को कॉन्स का देखना है तो कांस्टेंट को आप ना एग्जांपल जैसे हमने बनाया था उसको इंजेक्ट करके देखो। अगर मैं इसमें अगर किसी एग्जांपल में हम लोग बनाएंगे ना, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को इंजेक्ट किया था, राइट। मैं जैसे ये कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट करके एपीआई से कॉल करें, ठीक है, जैसे रिटर्न मिल रहा है, ये एक्चुअली सर्विस में जाना हाँ, तो ये तो सर्विस में जाएगा, तो फिर फैक्ट्री और ये डायरेक्टिव में आना ही नहीं चाहिए, उसने किसने में नहीं बनाया, सर, ये आप वो कंट्रोलर में, तो ये फिर आप ये ठीक स्टार्टिंग है। में बता रहे थे ना, उस टाइम पे ये डाला था। हाँ तो ये कंट्रोलर में तो भी ठीक ही है। तो ये सारी चीजें मेरी सर्विस में जानी चाहिए। क्यों सर्विस में जानी चाहिए, क्योंकि ये सारा लॉजिक मेरा है ना कॉमन जगह पे रहना चाहिए, जिस जो यूजर हर बंदे को पता है कि मेरा जो भी $HTTP का लॉजिक है ना वो सिर्फ एक सर्विस नाम के फोल्डर है उसमें मिल जाएगा। और ये जो URL है या सर्विस पाथ है ये कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखते, इसकी वजह हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्स। तो ये जो डेटा 1 है वो हो सकता था कि मेरा हमने यहाँ पे ऐसे लिखा होता, और एक जो कॉन्स फोल्डर है उसमें मैं वो पाथ डालूंगा। उससे प्रॉफिट क्या होगा कि मेरे जो यूआरएल से वो रन टाइम पे कभी भी चेंज, अगर चेंज आता है तो मेरे को एक ही जगह, और उसको मैं हर जगह पे यूज कर लूंगा। तो ये मतलब मेरी बेस्ट प्रैक्टिस है जिसको मेरे को यूटिलाइज करते आना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग हर कोड को ऐसा लिखते हैं ना कि एक बार कहीं चेंज आ जाए तो हमको ज्यादा जगह चेंज नहीं करना पड़े, और यही आपको सीनियर बनाता है और यही आपको है ना बेस्ट डेवलपर भी बनाता है, ठीक है। ये समझना है। इसके बाद हम लोग है ना आज एग्जांपल देते हैं, देखते हैं हमारे किसका, राउटिंग का, ओके। तो राउटिंग हमारी एक्चुअली होती क्या है ये अभी समझने आ गया ना, ओके। How to go to Firebase, so what we have to do, go to Google, okay, and type the Firebase Google, okay. In Firebase Google you can go to first link or second link and type on get started free, okay. Let's create a new project here, and we are in India, we are giving the name is Angular demo, okay, and I am giving the name is India. I am nearby, my region is India, right? So I'll always choose the India because otherwise it will little slow for you.
once you will create the project, it will have the all APIs ready for you. So you just need to push the data and get the data from here. Okay, so you give me your login page, add update user if you have created. I ask you to create add update नहीं वो user. नहीं किया ऐड अपडेट ठीक है, चलेगा। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन हमारा क्या है, मैं गेट इसमें जाता हूँ, साइन इन मेथड की हमको ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें एनोनिमस यूज़र को अनेबल कर देता हूँ। तो ये हमारे को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, तेजस्विनी, दिस इज स्पेशल होमवर्क फॉर यू। what you have to do, you have to integrate the all five, at least Google, Facebook, Twitter and GitHub. दिस इज द, आपने सुना होगा, और ये इसका है ना, आपको बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको वो कहना मेरे को भेजना है 5 दिन में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आज के जितने भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, वो एवरीवन इज टॉक अबाउट द OAuth, आपने सुना हाँ होगा। वो सुना हाँ तो आपको अगर OAuth की प्रैक्टिस करनी है ना, कैसे हाँ होता है, तो दिस इज द ऑटोमेटिकली एग्जांपल, दे हैव इंटीग्रेटेड विद द OAuth। ओके, तो सर लेकिन जैसे सुना है कि हेडर में वो पास करते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन वो के लिए आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। OAuth ये ऑलरेडी दे इम्प्लीमेंटेड। तो अगर आप है ना यहाँ पे गूगल करोगे, ठीक है ना, इसके लिए आपको थोड़ा गूगलिंग करना पड़ेगा, बट दैट इज योर हाँ एक्सपीरियंस कि आपको आना ही आना चाहिए। हाँ वो अच्छा ये आ गया ना, फायर बेस का आ गया ना, तो हाँ आप फिर चाहे आजूर हो, हाँ देखो आज इंडस्ट्रीज व्हाट दे आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द क्लाउड, और फिर सेम कोड होगा, 2-4 लाइन का इधर उधर चेंज होता है OAuth के कंसेप्ट के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है विथ हेल्प ऑफ द OAuth। OAuth में क्या होगा कि वो बंदा है ना, इन सारी चीजों से लॉगिन होगा। तो आपको जीमेल, एक एग्जांपल जीमेल का, फेसबुक का, ट्विटर का, गिटहब का, एनोनिमस का, ये एग्जांपल आप बनाओ एंगुलर जेस और इसके साथ। और इसके लिए क्या करना, सिंपल से आप टाइप करना है फायर बेस एंगुलर जेएस। ओके, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन सॉरी। ओके, तो आपको ना इतने सारी चीजें मिल जाएंगी, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट दिस OAuth फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो और मेरे को है ना लाके दिखाना कि आपने कैसे बनाया है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, पासवर्ड से होता है मेरा, जितने भी यहाँ पे तरीके दिए हैं ना, और गिटहब, ट्विटर, फेसबुक एंड गूगल इसको आज की डेट में सपोर्ट कर रहा है। ओके, लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, ये जो ये चीज है ना, यहाँ पे कर लिया तो आपका आजूर और AWS उसमें भी हो जाएगा। सर एक और चीज फिर बताना आपसे पूछना था ये तो मैं करके लाऊंगी और एक SSO इंटीग्रेशन सिंगल साइन ऑन इंटीग्रेशन यही तो है ना OAuth। तो उसी के लिए है ये वाला ओके तो लेकिन आपको अगर सिंगल साइन ऑन में कैसा रहता है कि जैसे देखो, अगर सिंगल साइन ऑन में के मल्टीपल वेज हैं। हाँ ओके, सिंगल साइन ऑन एक वे रहता है कि जो आपके ऑफिस के अंदर हाँ से ही होता हाँ है, तो वो आप जावास्क्रिप्ट से मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ उसके लिए आपको ना सर्वर पे ना AD इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन जो ऑथ रहता है वो आप है ना जावास्क्रिप्ट से मेंटेन कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको ये मत दिया। लेकिन सिंगल साइन ऑन के लिए आपको सर्वर साइड डेवलपर ही लगेगा, क्योंकि उसमें बैकएंड में क्या होता है ना, IS में पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसका और जावास्क्रिप्ट का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप वही चीज आप नोड.js से करना चाहो, तब आप OAuth सिंगल साइन ऑन को, आपको जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने की फैसिलिटी रहेगी ऑफ कोर्स नोड.js में, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द सर्वर साइड कोड, जो ब्राउजर में हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये सारे जितने भी ये प्रोवाइडर्स है, क्या नाम है, OAuth के जितने भी हैं, ये आप कर सकते हो। और उसके लिए आपको पता है क्या गूगल करना पड़ेगा, यू हैव टू लिटिल वर्क हार्ड फॉर दिस, आई नो, लेकिन ये आप है ना करके ही लाना इसमें। तो करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे आपने गूगल का स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो OAuth इंटीग्रेट करने के लिए गूगल का ऑन करो, ठीक है ना। तो वो क्या बोलेगा, अभी अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया था, तो इसने ऑलरेडी बोला था वेब SDK क्लाइंट ID वगैरह आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा इस एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तो आपको ये ना पूरी जितनी भी हेल्प होगी ना, जो आपको
वहां से मिलेगा, वो आपको ना यहाँ पे हेल्प में बता देगा कि एसडीके से मेरी ये आईडी मेरे को पास करनी होती है। ओके, तो ये आप ये कैंसिल करता हूँ। वेब एपीआई में आपको है ना सेटिंग कैंसिल, ये ऐप सेटिंग आपको एप्लीकेशन में डालनी पड़ती है वेब सेटअप के लिए, ठीक है ना। तो ये सेटिंग आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में प्रॉपरली मिल जाएंगी। और उसके बाद वेब के एपीआई में यहाँ पे जाके इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके आओ। इसका रीडायरेक्ट का फॉर्म बनाओ विंडोज का, वो फॉर्म तो डायरेक्टली इनका ही होता है फेसबुक का, लेकिन रीडायरेक्ट होना चाहिए। अगर मैंने फेसबुक चूज किया, एक ऐसा फॉर्म बनाओ जिसमें छोटे छोटे बटन होंगे, आइदर मेरा नॉर्मल प्रोवाइडर और मेरा क्या नाम है वो मतलब नीचे गूगल का आइकन होगा, तो गूगल के आइकन पे क्लिक किया तो गूगल का पॉपअप खुलना चाहिए। गूगल का पॉपअप खुल गया तो वहाँ पे फिर उसको यूजर नेम पासवर्ड सही डाला तो क्या होता है, ये आप आगे इसको रिसर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा। अगर आपको ना गूगल गूगल का नहीं करना और आपको ईमेल पासवर्ड देना है तो इसको अनेबल करना, एंड यू कैन डू डायरेक्टली विद दिस, और उसमें लिखना सेव, एंड यहाँ पे फिर जाके आप है ना यूजर्स को ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। ऐड यूजर में क्या होगा कि लाइक मैं ईमेल और बोलता एक हूँ कि पासवर्ड ए बी एच ए वाई abhavaI@test.com, ओके। और ठीक है ना, और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ GPH, ठीक है ना। और मैं ऐड एटलीस्ट 6 करेक्टर तो मैं देता हूँ abhavaI@123, ठीक है। मैं इसमें ऐड यूजर करूंगा ना तो यहाँ पे ऐड यूजर हो जाएगा। अभी आपको पूरी एप्लीकेशन इससे बनानी है एंगुलर जेस के साथ, जिसमें आप सारे प्रोवाइडर्स रखोगे। जैसे ही आपका ऑथेंटिकेशन एक्सेस वगैरह मिल जाता है ना तो उसमें ना सारी एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। इसी सर्विस को यूज करो तो मतलब सबके साथ वो कोड शेयर कर पाओगे आप, ओके। और इसमें एक और चीज रहती है कि पता है इतना पावरफुल है कि आप इसमें ना रीसेट पासवर्ड, रिव्यू ईमेल टेम्पलेट, तो आप है ना इसका ना कोई फॉरवर्ड पासवर्ड करे तो फॉरवर्ड पासवर्ड भी उसको आना चाहिए। ये सारी फंक्शनैलिटी आपको बना के लेके आनी है। तो उसको ऐसा ईमेल चला जाएगा और जब वो बंदा ईमेल पे क्लिक करेगा ना तो उसको पूरा एक ऐसा, अभी तो हमारे इसमें हमने पेज इंक्लूड नहीं किया है, वरना हम लोग पेज इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वाली फंक्शनैलिटी आप है ना पूरा जो अमूल तुझा करता ही है। सर मला क्या आपने किया था, टॉपिक क्या मैंने था? कुछ नहीं किया, मैंने उनको बता रहा हूँ फायर बेस का व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अचीव द ना OAuth ऑथेंटिकेशन एंड you have to do lots of googling, but I am telling you if you know this it is the very very well advantage in your resume, okay। क्योंकि यही सेम कंसेप्ट आपका Azure और AWS में चलता है, Azure और AWS में। लेकिन इसका कोड लिखना कम से कम है ना 8 से 10 घंटे का से भी ज्यादा का काम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते, बट आई एम टेलिंग यू और बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ट्रूली स्पीकिंग आपको बहुत R&D करनी पड़ेगी। तो उस लेकिन अगर आपने एक बार R&D कर ली, ठीक है ना, योर वेटेज इज वेरी वेरी हाई इन योर रिज्यूमे, क्योंकि UI डेवलपर को रेयरली ये चीज आती है और उनको कभी और कहीं अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती कि ऐसा वो डेवलप कर लें। तो इसे क्या ऑथेंटिकेशन बोलते हैं क्या? इसे ऑथेंटिकेशन, ये पूरा ऑथेंटिकेट कर देगा गूगल के साथ। तूने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा ना, लॉग इन विद गूगल, दैट इज दिस। तो आपको ये ना पूरी ना R&D करके लेके आनी है। सर ये गूगल के साथ में और नॉर्मल जैसे मेरे डेटाबेस में यूजर नेम है, तो वो यूजर है तो वैसा उसका उसमें फ्लो दिया कैसा है है? ना, वैसा उनने तो नॉर्मल ईमेल का भी अगर हमारे टेम्पलेट ई दिया है। शॉपर पे कोई आता है NIC रजिस्टर्ड और वो अपना एक यूजर हाँ क्रिएट करता है तो उसका फ्लो कैसे रहेगा सर? उसका फ्लो क्रिएट यूजर का भी सर एक तो ये जो स्क्रीन नॉर्मल बनाना। ईमेल पासवर्ड हमने क्रिएट किया अभी, तो वो एज एपीआई का मुझे रिस्पॉन्स ऐसा करके हाँ अभी आप ये गूगल करके लाना ना फायरबेस में, आपको गूगल क्या करोगे वो भी बताए ऑथेंटिकेशन, तो उसके बहुत सारे वेज हैं। तो जैसे ये वाला फायरबेस का ऑथेंटिकेशन उनने यहाँ पे दिया है, क्या तरीका जब देते हैं ना, एपीआई जहाँ डिफाइन करी होगी ना वहाँ पे उनने लिखा होगा एग्जाम्पल में,
इस वाले एग्जांपल में डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है। इनके एग्जांपल में हमको उसमें बताना पड़ता है कि मेरे को कौन सा वे चाहिए, तो इन लोगों ने इस एग्जांपल में बताया नहीं कि मेरे को कौन सा वे चाहिए। हम लोग डॉलर ऑथ विथ पासवर्ड, हाँ अच्छा ये दिया है ना, डॉलर ऑथ विथ पासवर्ड है, डॉलर ऑथ विथ जीमेल, ऐसे आपके बहुत सारे आएंगे। ये आपको एंगुलर में ना, एंगुलर फायर करके फायर बेस का ऑथ का ये एक लाइब्रेरी आपको डाउन इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये लाइब्रेरी भी आप गूगल करोगे ना, का वो उन लोगों ने कुछ ऐसा चला है जिसके कारण फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ये सारा इन लोगों ने दिया हुआ है। अगर क्योंकि अगर तू भी एप्लीकेशन बना रहा है ना, तो आजकल कोई भी बंदा ये नहीं चाहता ना कि ना भैया मेरे एप्लीकेशन में कोई भी है ना नया यूजर क्रिएट करूं फिर मैं उसको वेरीफाई करूं। इससे अच्छा तो लोग क्या चाहते हैं, मैं जीमेल से ही ऑथ करूं तो या मैं फेसबुक से लॉगिन करूं। तो जब ये फेसबुक से लॉगिन ये बोलते हैं तो हमारा एक्चुअल यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है क्या उसमें? फेसबुक का, हाँ फेसबुक का तो वो तो फिर एक्सपोज हो जाता होगा ना। सही हो नहीं होता। नहीं सर, बहुत सारे मैं नहीं करता सर, ना, मैंने अभी तक भी नहीं किया। मैं वो बोलते हैं तो मैं आई नहीं जनरली वहाँ पे क्या अवॉइड। होता है जब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं ना, तो वो लोग वो करवाते हैं अलाउ अलाउ समथिंग, नहीं, हाँ लेकिन वो वो आता है। पासवर्ड पे भी एक्सपोज नहीं होता नहीं ये। पासवर्ड एक्सपोज नहीं होता, बट आपका जो प्रोफाइल है, डेटा आपका जो पूरा बाकी एक्सपोज हो इन्फॉर्मेशन जाता वो है। तो जाता ही हाँ तो वही तो आप ले सकते हो ना, तो आपको ये कब डेवलप करना है कि मैंने उनकी सारी इंफॉर्मेशन ले लूँ, अलाउ करूँ और मैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन ले लूँ। ये आप इसको स्टडी, और दिस विल टेक आई इजीली 5-10 days फॉर यू गाइस। बट आई विल टेल यू कि अगर आपने ये कर लिया ना और अपने सिर्फ रिज्यूमे में डाल दे कि आई नो वेरी वेल ओ ऑथ, सर हमें तो सादा वाला नॉर्मल वाला ही नहीं आता हमको तो। इसलिए तो करने को फिर डायरेक्टली एडवांस वाला नहीं नहीं, तो पहले नॉर्मल एक्चुअली से पहले करो ना। नॉर्मल वाला करना चाहिए। तो तीनों दिए ना, पहले नॉर्मल वाला R&D करो। के अंदर। ईमेल का, ईमेल का इसमें डेटाबेस नहीं ना, तू डेटाबेस क्रिएट करने वाला है क्या? नहीं करना है। तो इन लोगों ने तीनों दिए हुए हैं कि डेटाबेस वाले में क्या है, क्या किया है तुमने, पूरा गूगल का कोड दिया है। ओपन विद, मैं इसका कोड दिखाता हूँ, इसके लिए करके दिया था हमने, इसके लिए मेहुल आया था। तो लेकिन आई विल नॉट शेयर दिस कोड, यू हैव टू डू द R&D। मेहुल का एक फोल्डर होगा, हाँ बैच के अंदर ही मेहुल का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेहुल का नाम फोल्डर है क्या? यहाँ पे मेहुल नाम लिखा है। हाँ ये उसका एक प्रोजेक्ट था, ठीक है ना। तो ये आपको लेकिन है ना, और इसका एक रीजन है स्पेसिफिकली, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग दिस कोड, कि है ना ये ऐसी चीज है ना, ये अगर आपने बिल्कुल है ना खुद R&D करके समझ ली ना, आपका रिज्यूमे की जो वैल्यू है ना वो डबल हो जाने वाली है आज के इंडस्ट्री में। बाकी सारी चीजें एक तरफ और वो और एक तरफ, वो बोलो तो इसको ओपन ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और भी इसका प्रॉपर नेम में ना मे बी अभी टॉप ऑफ माय हेड नहीं है, लेकिन है ना इसको बोलने का तरीका OAuth ही है। तुम्हारे एप्लीकेशन में भी OAuth यूज हो रहा होगा, देखना। नहीं, फिलहाल उन्होंने क्या किया ना, जो डेटाबेस में फर्स्ट नेम डेटाबेस लास्ट में नेम है ना, हाँ उससे एक्चुअली मल्टीपल एप्लीकेशन है। मेन एप्लीकेशन में जो मेरा ऑब्जेक्ट से फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, तो दूसरा एक चाइल्ड एप्लीकेशन है जिसमें कि ICICI के जैसे कि हमको हमारा ही दिखता है ना हाँ अकाउंट का। हाँ हाँ। तो मुझे लॉगिन करना है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज अ यूजर नेम पासवर्ड इम्प्लीमेंट किया है विद टोकन जनरेशन। अरे क्या हुआ इसका? तो इमेज में वो टोकन जनरेशन का वगैरह कोड डाल के उन्होंने वो ऑथेंटिकेशन किया है प्लेन। एटलीस्ट हमको उतना तो भी आना चाहिए, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ते नहीं, हैं। तो इसी को यूज करो ना, यहाँ पे तुमको मैं इतना अभी पता नहीं इसका क्या हुआ था। मैडम वाईफाई बंद है? नहीं, कौन सा था, ट्रस्ट बैंक अकाउंट HTML? ठीक है, मैं आपको सीधे सोर्स कोड दिखाता हूँ, इसमें बनाया था ना मैंने, उसके लिए याद नहीं। तो इसका जो नॉर्मल आवाज का जो तरीका था ना,
तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, मैंने इसको लॉगिन 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 ओके, इसकी मैंने एक सर्विस बनाई होगी। उसको करना था लेकिन वो ये देख के इतना घबरा गया कि उसने, तो इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने क्या किया, एक सर्विस बनाई, ठीक है ना। ये कोड चाहिए तो लेके जाना, तो तुमको समझ में आएगा इसका। ये नॉर्मल है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड को कैसे चेक करते हो ना, उसका ये नॉर्मल वे है। लेकिन एट द लास्ट यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द एपीआईज, राइट। आपको तो सिंपल से एपीआई कॉल है, तो ये सेम एपीआई कॉल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन और ये वाली चीज आपको आनी आनी चाहिए, क्योंकि 88 पर 99% जो भी है ना क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी चल रही है, वो उसका कोड राइटिंग का तरीका सेम है। एक कॉन्फ़िग मिलेगा, उसके अंदर 5-6 आपके टाइप्स रहेंगे, कीज रहेंगी जो आप सेट करते हो। उसकी एक ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी रहेगी इनिशियलाइज ऐप करके, चाहे आप आजूर में जाओ या फिर AWS में जाओ, ओके। और उसके अंदर मेरे को क्या करना है, उनने ओ ऑथ में साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड मैंने किया, तो मेरे को यूजर नेम एंड पासवर्ड पास कर दो, अगर ये ट्रू आया तो पास है, वरना फेल है। तो सर ये लेकिन आपने यूजर नेम पासवर्ड उधर कोड में क्यों लिखा? कोड में कहाँ लिखा है? है ना एक कोड में मेहुल अरे वो तो हम दूसरा लोग, वो तो पैसे ही किया हुआ है। वो तो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि भैया जिस समय मैं आउटपुट कर दूंगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू यूज द नॉर्मल, मैं एनजी मॉडल तो लगा ही हुआ है ना, अगर कोई दूसरा डालेगा तो वो तो लॉगिन नहीं जाएगा। मैं जब डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो हमेशा उसमें अपने आप ही पॉपुलेट आ जाए तो फास्ट हो जाता है ना। मैं सबमिट बटन डालूंगा तो सीधे मेरा जाएगा, वरना टाइप कौन करते बैठेगा। आज क्लास में यही से स्टार्ट हुआ क्या? फायरबेस से स्टार्ट हुआ? नहीं, हमने नहीं, प्रोवाइडर पहले किया है, तो वो मैं तेरे को बताता हूँ। प्रोवाइडर इज रिकॉर्डेड इज द सेम एज सर्विस, इसीलिए हमने वो लिया, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। फिर उसमें दो ही चीज़ें एक्स्ट्रा हमने पढ़ी है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग सर्विस बनाते हैं ना, वैसे ही हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं, और वैसे ही हम लोग वैल्यू बनाते हैं। तो ये कांस्टेंट में क्या रहता है? तूने भी लास्ट बार भी पूछा था ना, कौन कैसे बनाना। कांस्टेंट में मेरे कांस्टेंट प्रोजेक्ट मतलब में कॉन्फ़िगरेशन है यूआरएल। जनरली कांस्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखते, जो चीज़ कभी चेंज नहीं होने वाली वो कांस्टेंट में रहेगी। तो अपने यहाँ पे भी ऐसे ही किया क्या? यूआरएल को तोड़ा हाँ, जाता है? यूआरएल को अभी तोड़ सकते हैं, अभी हमने किया नहीं, आज ही एग्जांपल समझा ना। लेकिन कॉन्स्ट बनाने का एंगुलर जेस का तरीका क्या है वो पता होना चाहिए। ऐसा ही कॉन्स्ट बना है फिर। उसने उसमें क्या किया कि जो मेन जहाँ से मुझे एपीआई आ रहे हैं ना, हाँ, वो कस्टमर नाम का एक बड़ा सा एपीआई है, उसके अंदर ना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, फिर ट्विटर इन्फॉर्मेशन है। तो उसने एक बड़ी सी किया, नीचे में एरे बनाया है, और वहाँ पे की उसने ये किया। फिर वो अंदर जहाँ पे मुझे कंट्रोलर पे चाहिए ना जो डेटा, जैसे मुझे किसी एक पेज पे ट्विटर का डेटा चाहिए जो कि कस्टमर के अंदर ही है। तो उसने क्या किया, फिर एक यूआरएल लिया, और उसमें उसने क्या किया ना कि उसमें कॉन्केनेट करके वो चीज़ें वहाँ पर कॉल की। तो मेन यूआरएल उसने कांस्टेंट में कॉल किया, नीचे में उसने की वैल्यू से उसको कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। चेंज नहीं हो रहा है वो, लेकिन कस्टमर के अंदर बहुत सारे डेटा है। उसका खुद का पर्सनल डेटा है, उसका क्रेडिट कार्ड है, उसका सोशल डेटा भी है। तो मुझे अगर सोशल डेटा हर पेज पे नहीं लग रहा है ना, मैं हर कंट्रोलर में कॉल नहीं कर रहा हूँ, तो जिस कंट्रोलर में मुझे चाहिए तो मैं वहाँ पे कॉन्केनेट करके वो सोशल डेटा ले रहा हूँ। पता नहीं उन लोगों ने कॉन्स्ट, लेकिन कॉन्स्ट एंगुलर जेस का ये कॉन्स्ट कीवर्ड पढ़ा है क्या तुमने कभी, देखा है क्या? नहीं, तो एंगुलर जेस में कॉन्स्ट यूज करने का तरीका कॉन्स्ट ऐसा होता है, न कि हम लोग नॉर्मल एरे बना दें। इसके अंदर तू एरे पास कर सकता है। तो ये किस लिए होता है सर ये कांस्टेंट? कौन सा, अभी इसको मैं कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। हालांकि तेरे ग्लोबल वेरिएबल से भी वही चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे वैल्यू 1 वैल्यू को हम लोग ऐसे इंजेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इस ये एंगुलर जेस के अंदर ये का ये तरीका है कांस्टेंट बनाने का। ऐसे बना, लेकिन अगर आपके इसमें बहुत सारे एपीआई कॉल है
तो आप कांस्टेंट में ही उसको कॉन्फ़िगर करोगे क्या? हाँ, सारे कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट पाथ यहाँ पे ही रहेंगे मेरे। मेरा ये मैं बोलूँगा कौन सी एपीआई है, लॉगिन एपीआई, और तो पाथ मेरा वहाँ पे पाथ डालोगे। यहाँ पे डालूंगा और डबल कोट कभी नहीं डालूंगा, सिंगल। HTTP वाला जो पाथ रहेगा यहाँ पे रहेगा। हाँ, यहाँ पे स्लैश से http whatever the path is। हाँ, क्योंकि वो तो HTTP से किसी और हाँ थर्ड जगह से आ रहा है। हाँ, तो http से डालूंगा। और मुझे जहाँ पर ये लग रहा है तो वहाँ पर मैं उसको ये कर लूँगा। और उस सिनेरियो में नीचे भी मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया। एक मेन डेटा है, उसको मैं तोड़-तोड़ के बना रहा हूँ, अलग-अलग इस पे। हाँ, तो वो आपको एक बार में आप है ना जितना लिख बनाना चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन एक बार बना दिया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, वो चेंज नहीं हाँ, करना है। तो बस ऐसा अपन बना सकते हैं, configure कर और सकते हैं। हमने लास्ट एक टाइम वैल्यू भी होता है जिसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो एक और प्रोवाइडर होता है वैल्यू, जिसको हम लोग नहीं कर चेंज सकते कि कर सकते वैल्यू को चेंज हाँ, चेंज कर सकते हैं, constant को change। वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हाँ, डायनामिकली। कांस्टेंट को। तो इसके लिए फिर हम इसको कहाँ पे डिफाइन किया सर, ये वाली फाइल? यानी अल वैल्यू फोल्डर में। बाकी सारे तरीके तो मेरे इंजेक्ट करने के वैसे ही हैं। वैल्यू नाम का भी फोल्डर बन रहा है क्या? हाँ, वो प्रोवाइडर ही मतलब वो भी सर्विस के जैसा ही ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले वो पूरा वीडियो करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन के साथ आता हूँ। अभी आगे से कुछ पूछने में पॉइंट नहीं। हाँ, ठीक है। और है ना ये मेहुल वाला भी लेके जाना, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये जो मैंने होमवर्क दिया है ना, इट इज नॉट रिलेटेड विद द एंगुलर जेस, ठीक है, प्योरली, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का भी पार्ट है। वो नॉर्मल किसी भी इसका पार्ट है, ओ ऑथ का पार्ट है, दैट इज रियली वेरी बिग टॉपिक, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करो और मेहनत करके ना पूरा है ना आउटपुट लेके आओ, दैट इज गोइंग टू कीप इन योर रिज्यूमे वेरी बिग वैल्यू, सर ठीक है। लास्ट टाइम हम जो ई शॉपर में कर रहे थे ना, जो प्रोडक्ट मैंने लेके आया था, हाँ, उसका कॉल हमने कंट्रोलर में किया था, डेटा का। आपने सर्विस जब बताने वाले थे, वो हम लोग सर्विस में मूव करने वाले थे, मूव वो कर किया दिया है था क्या? ना हमने नहीं किया था लास्ट टाइम। सर्विस में, कहा किया? नहीं, सर, हाँ सर्विस में नहीं, लॉगिन वाला जो बता रहे थे उसको सर्विस लॉगिन नहीं में किया था ये तो हो गया ना, प्रोडक्ट के डिटेल आ गया ना इसमें, ये किस में डाला है? कंट्रोलर वाला सर्विस था, में ले आया ना। इसी में तो एग्जांपल दिया था इसका सर्विस में। अब ये सर्विस तो कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकते लास्ट टाइम हुआ है क्या सर्विस वाला? हैं। हाँ, आपने होता था। लॉगिन वाला बताया था ना? लॉगिन वाला नहीं, लॉगिन में ही था ना उसके आपने? पहले वाले में हुआ था शायद। क्योंकि लेकिन मैं ये ई शॉपर में होता, हमने हार्डकोर ही डेटा वहां से लिया था, उसके कंट्रोलर बाद से। हमने सर्विस कर लिया था। सर्विस तुम्हारे सामने ही हुआ है, तू तो एकही सुट्टी नाही घेतली, काय करतो काय तू पण विसरला। सर्विस से प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देखो 2 दिन पुरानी, और है ना चेक करके सर्विस काय असते। आणखीन सर्विस नंतर काही केलंच नाही ना, $HTTP ला ई शॉपर पे तो दिख रहा है। $HTTP ला इंजेक्ट केलं आणि त्याच्यामध्ये $HTTP त्यांना रिटर्न करून दिले, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग $HTTP there। ठीक है, यहाँ का कॉल किया, ठीक है। अभी कांस्टेंट क्या रोल प्ले करेगा इसमें? अगर तेरे को ये एपीआई का पाथ कांस्टेंट में डालना है, ठीक है ना, कंट्रोल सी, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो हियर एंड यू कैन पुट दैट एपीआई हियर। इनको नहीं करता, नया बना लेते हैं, app const। तो लेकिन सर्विस में हम रिटर्न नहीं करते ना, कहाँ रिटर्न कर रहे फैक्ट्री हैं? में करते हैं। रिटर्न कहाँ कर रहे तो जो http.get हैं? करके ये जो तो एक रिस्पॉन्स आया, फंक्शन है, हाँ ये रिटर्न नहीं, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, सर्विस अच्छा, हाँ रिटर्न हाँ है। हाँ, मेन सर्विस का रिटर्न। हाँ नहीं कर रहा। हाँ सर, याद आया, सॉरी। बहुत सारा काम एंगुलर में करके आना, तो सबकी चीजें हो गई। अभी वो नीचे का कोड देखा ना, ऐड प्रोडक्ट। हर दिन मुझे नया कुछ प्रोजेक्ट में तो नया कुछ मिल रहा है। एक एंगुलर रिफ्रेश नहीं करता ना पेज को, तो मैंने पेमेंट का डिटेल डाला सर, सबमिट किया, अभी तो राउटिंग बाकी थैंक्स, है हमारा। तो थैंक्स में जाना है ना, तो थैंक्स में पेज रिलोड नहीं होता, हाँ, हाँ। तो मैसेज रहता है ऊपर पूरा ब्लैंक पेज दिखता है। तो मेरा तो डर रहा यार, तो ये तो रिलोड नहीं कर, फिर रिलोड का कोड देख रहा था, विंडो डॉट रिलोड मिला था। वैसे ही करेंगे ना उसको? नहीं, बहुत सारे वे। उसको नहीं नहीं, राउटिंग इनको यूज ही नहीं करना है ना, तुम्हारा राउटिंग से भी कर सकते हो ना। रिफ्रेश कैसे होगा?
पेज रिफ्रेश की क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है पता है क्या? पेज बहुत बड़ा है, क्रेडिट कार्ड का डिटेल वाला। हाँ तो मैंने डाला, सक्सेस हुआ तो कंफर्मेशन के पेज पे जाना चाहिए। हाँ अब चूंकि मेरा डिजाइन ही बहुत लंबा है, तो मैंने मैसेज तो ऊपर दिया, क्योंकि वो थैंक यू वाले पेज पे कुछ भी नहीं है, केवल एक ऊपर मैसेज है। अब होता क्या है कि मैं जब क्लिक करता हूँ ना, तो पेज बहुत बड़ा है, वो उस पे जाता है थैंक यू पे, लेकिन वो मैसेज ऊपर रहता है। तो और पेज पूरा ब्लैंक प्ले पे तो क्यूए ने बोला कि ये थैंक यू के मैसेज तक जाना चाहिए, तो हम लोग बुक मार्किंग यूज करते हैं ना जनरली, हैश पास नहीं, करने लेकिन तेरा पेज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तेरा पेज ऊपर तक जाना चाहिए, मतलब ऊपर का जो है वो दिखना चाहिए। लोकेशन जो सिर्फ है एक छोटा सा मैसेज है ना थैंक यू का। एक ही हाँ, लाइन और का तुम मैसेज है, नीचे हाँ, ऑलरेडी और और वो मैं ऑलरेडी नीचे वहाँ कूद जाता नीचे हूँ, है। क्योंकि वो एंगुलर तो पेज रिफ्रेश तो नहीं करता। पेज के ऊपर, हाँ, एंगुलर पेज रिफ्रेश नहीं करता। नाउ दिस इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो आपको ये वाले पेज का जो डेटा है वो हाइड कर देना है कि दूसरे पेज पे नहीं, जाना? दूसरा मैंने नया पेज बनाया हाँ, तो नया पेज जाना है तो उसका तो साइज ऑटोमेटिकली कम ही रहेगा ना, इतना बड़ा थोड़ी पेज पर रहेगा। मेरा लेफ्ट कैटेगरी ऑलरेडी है, मेरा उसमें हेडर ऑलरेडी है, तो फुटर फिर ऑलरेडी तो है। तेरा मतलब कहना है कि स्क्रॉल तेरा ज्यादा था, हाँ, तो तो तू मुझे उसको जो पर्टिकुलर पोजीशन स्क्रॉल, पे एक सेकेंड, तो तू उसके लिए स्क्रॉल को यूटिलाइज करेगा ना, ना कि इसको, या फिर तू है ना हैश आईडी को करेगा। तू व्हाई यू विल रीलोड द पेज? क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका पेज रिफ्रेश होता है, बुकमार्क जब होता है ना, नेक्स्ट पेज जा रहे हो, पहले हम लोग एचटीएमएल में करते थे, तो जब प्लेन पेज के पूरा रिफ्रेश हो जाता है उस पे चले जाता था। ये क्या करता है, व्यू उतना ही करता है ना वो, तो वहां पे वो फंस जाता है, वो ऊपर उसको मिलता नहीं। मैं रिफ्रेश करता तो जाता है, मैं रिफ्रेश करूंगा ना, हैश आ गया यूआरएल में और मैं रिफ्रेश करता बाद में तो हो जाएगा, मैं वहां पे फंस गया। लेकिन सर नहीं ना, वो तरीका गलत है। विंडो रीलोड विंडो रीलोड किया तो तेरे पुरानी सारी वैल्यू चली जाएंगी ना, क्या मेमोरी से। कुछ ना कुछ तूने जो तरीका यूज किया दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए, तू वहाँ पे हैश आईडी डाल दे, हैश आईडी डाला ना यूआरएल यूआरएल में। में हैश आईडी, और नीचे आईडी लिखा क्या उसको, हाँ, तो वो नहीं मैंने चला। जो जिस पेज पे जा रहा हूँ उसके ऊपर में आईडी लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल कैसे करते हैं, आईडी लिखते हैं और यूआरएल में हम हैश पास करते हैं। हम्म वो किया, वो स्क्रॉल होकर आने वो के लिए हैश आईडी आता है ऊपर, हम्म यूआरएल में आता है, पर क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं होता तो वो नहीं रहता। स्क्रॉल वाला करूँ? तो ठीक है, वो स्क्रॉल को यूटिलाइज करो इंस्टेड ऑफ डूइंग द, तुम्हारा रिफ्रेश करेगा ना तो वो एंगुलर ही नहीं रहेगा। रिफ्रेश करेगा तो वो एंगुलर ही नहीं रहा, क्योंकि तूने पेज को तो रिफ्रेश कर सर दिया। ऐसी कंडीशन में तो हम लोग राउटिंग फिर यूज करते हैं ना। राउटिंग तो उसने यूज किया ही होगा। राउटिंग तो चल रहा है, विंडो रीलोड किया है ना। नहीं वो तो हमने एक्सप्लिसिटली किया है। विंडो routing रीलोड होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए एक्चुअली, पर मैं ऐसे सर्च कर रहा था तो एक ने बताया कि रिलोड कैसे करते, तो उसने डॉलर विंडो डॉट रिलोड, और पास दिया वो चल नहीं रहा है। हैश आईडी आ रहा है यूआरएल में, पर आप जो बोल रहे हो सही है, अगर रिफ्रेश होता तो एंगुलर नहीं है ना। फिर वो एंगुलर नहीं है। तो आप ये ना कोई ये रियल टाइम स्पेसिफिक, सिनेरियो है, ये हो ये सकता है। ये हाँ, ये बहुत मतलब रियल टाइम सिनेरियो हो गया, और एक पर्टिकुलर लॉजिक के लिए हो गया। तो एक काम करना, आधा उसका पेज है ना डमी बना के लेके आना, ठीक है ना, एंड आई विल टेल यू कि एक्चुअली उसके लिए कोई सा दूसरा लॉजिक होगा। एक छोटा सा सैंपल बनाना ना जिसमें बड़ा पेज हो, हाँ, और तेरे को फिर राउटिंग में लग तेरा जाता है। दूसरा पेज आ रहा हो, आई विल टेल यू कि हाउ टू गो, क्योंकि जो तूने लॉजिक यूज किया है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वरना वो एंगुलर ही नहीं रहा। नहीं, विंडो का भी निकाल दिया मैंने, हैश यूज किया, बट ओनली विद हैश चलता नहीं है क्योंकि वो रिफ्रेश होता नहीं है। तो स्क्रॉल वाला शायद आप बराबर बोल रहे हो कि मुझे वो सर एंगुलर में, location का- लेकिन ये हैश वाला भी प्रॉब्लम करता है ना, जब क्या? हम लोग ये जो एंकर पे जैसे लिंक दिया या ऐसा कुछ, हाँ, void hash के लिखना साथ पड़ता है। वो भी नहीं लेता है एंगुलर। एंगुलर में नहीं नहीं, लेंगे वो void लिखना पड़ता है, हाँ void हाँ आपको डालना पड़ता हाँ। तो लेकिन हम लोग है ना, यही मैं बोल रहा हूँ ना, तू ये स्पेसिफिक लेके आना। हाँ। लेकिन जो तूने किया वो तो प्रॉपर है ही नहीं आंसर। है। हाँ, तो मैं इसलिए पूछा कि इसका क्या तरीका उसके होना बजाय आपको यूज करना पड़े, कोई ना कोई दूसरा ही लॉजिक यूज करना पड़ेगा। या तो मैं स्क्रॉल कर दूं टॉप पे, हाँ, टॉप पे स्क्रॉल कर सकता है, विंडो स्क्रॉल डॉट टॉप भी हो सकता है ना। विंडो डॉट टॉप भी हो सकता है, सिंपल सा बात, तुझे ही पता है अभी तो मेरे नहीं, लेकिन कल क्या वो कैप का भी टाइम और वो बहुत सारे इशू थे उसमें से, बाकी तो सॉल्व किए मैंने, इसमें मैं अटक गया। विंडो मुझे डॉट हाई टॉप। चैट भी मिल रहा है, नहीं थोड़ा देखने के लिए हाई चैट, तो थोड़ा सा यूज किया, पूरा तो पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन मैं शेयर करता हूँ कि वो प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है। जैसे फीड वीड बोला ना जो, तो नेगेटिव मैंने वहाँ पर वो यूज किया था, एनजी क्लास। उसमें क्या है ना कि फीड का सेंटीमेंट है, आई एम गोइंग थ्रू डाइवर्स, तो नेगेटिव है -1,
तो 3 कंडीशन थी कि 0 से एनजी नीचे स्विच तो वाला। आपका जो फीड है ना वो रेडी में आना चाहिए। अच्छा हाँ हाँ तो गॉट अ न्यू जॉब, तीनों क्लासेस अलग इंक्रीज अलग माई बनाया सैलरी, इंक्रीज उसके बहुत सारे पैरामीटर उसमें लिखे हैं। हाँ। इंक्रीज का 2 दिया है, तो ग्रेटर का 2 दिया है, तो वैसे फिर एनजी क्लास यूज किया वहाँ पर टर्नरी इसके साथ में कोड में लिखा था। नहीं, इसके लिए टर्नरी भी नहीं होता, इसके लिए पता है टर्नरी ऑपरेटर यूज किए थे। एनजी क्लास इसके लिए पता है क्या, एक और है ना ऑप्शन है, जो इनबिल्ट इसके अंदर है, सिंगल कर ली। देखो अभी है ना, जैसे हम ऐसा लिख सकता है, तो उसका जो सिंटैक्स है ना HTML में, हम लोग मिस्टेक कैसे बनाते हैं, एक ऐसी चीज है ना यूनिकली होती है, तो हम लोग है ना कभी, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं HTML पे बनाता हूँ। अभी मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली सिंटैक्स उसका याद नहीं, बट आई विल ट्राई टू डू दैट। ये अपना इसमें क्या है, अपना क्या चल रहा है, ये मेरा हेडर है ना, तो अभी मैं रन करूंगा तो मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे हेडर में टिक 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 कहाँ लिखूंगी, मेरा दिखेगा स्पैन एनजी बाइंड, इसमें से हटा देता हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पे मैं कुछ लिख पाऊंगा। ब्लैंक जगह पे लिखे है ना, नहीं, यहाँ पे फैक्स के साथ ही लिखते हैं, ठीक है ना। अभी मैं, ये मेरा मुस्टेक कीवर्ड होता है, ठीक है। मुस्टेक में एक और प्रॉपर्टी रहती है कि मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, क्या लिखा मैंने, मेरा कोई एक एरे होगा, तो जैसे मैंने लिखा वेरिएबल कौन सा था, रूट न्यू वैल्यू, ठीक है। अरे कंट्रोल रूट न्यू वैल्यू लिखा, ठीक है ना। और उसके बाद मेरा करली डालो, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मेरे को क्या अप्लाई करना है, ये 1 है तो क्या करना है, ये मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। आल्दो एनजी स्विच भी होता है, तो इसका मेरे को एग्जैक्टली सिंटेक्स याद नहीं है, तो उसमें बट क्लास आएगा क्या सर, फिर 0 है क्लास क्या, वो तो कुछ भी डाल सकता है ना, हाँ। ये सिंटेक्स है। तो इसका मैं गूगल करोगे ना, ये एंगुलर, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट कंडीशनल टेम्पलेट, कंडीशनल, हाँ मेरे को एनजी स्विच भी है, लेकिन कंडीशनल लॉजिकल टेम्पलेट, ये इसका नाम है। तो टर्नरी से ये अच्छा है क्या, अच्छा है कि इसको हाँ use ये करना ज्यादा चाहिए? अच्छा है, लेकिन ये हम लोग, ये देखने में भी बहुत कम तेरे को दिखने को मिलेगा, ढूंढते ढूंढते भी नहीं सब मिलना लोगों ने बहुत। एनजी क्लास ही डाला हुआ था। एनजी क्लास तो मेरे इसमें भी एनजी क्लास एनजी क्लास वगैरह तो है ही, तो कर ही सकता है, दूसरा एनजी क्या? स्विच भी कर सकता है, स्विच भी आता है क्या? एनजी स्विच भी हो सकता है उसमें, लेकिन पता नहीं, अभी पता होने चाहिए। बहुत सारी वैल्यू आ रही थी, तो उसमें जावास्क्रिप्ट का फिर हमने बहुत सारी डिजिट के बाद में बहुत सारे नंबर है, तो ग्रिड में दिखाना है 2 ही, तो फिर कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट सिंपल यूज किया, जहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है ना। 1.5 वर्जन ही है ना तेरा, हाँ, कंडीशंस, एंगुलर कंडीशंस, और उसमें मुझे ना अपनी नॉर्मल ग्रिड के साथ में एंगुलर यूआई ग्रिड वो भी यूज करने को मिली, और एक बूटस्ट्रैप की डायरेक्टिव आती है, वो दोनों यूज करने को मिली। क्योंकि नॉर्मल टू कोड का पहले वाला तूने इस तरह से यूज किया, राइट? हाँ सर, ठीक है ना, ये तो हमारा बहुत पुराना तरीका हो गया, लेकिन ऐसे ढूंढते ढूंढ कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, ऐसा याद नहीं रहे। एक तरीका तो ये है ही, ऑफ नहीं हम कोर्स नोट करके रखता हूँ ना सर, मैं वही चीज आपने जो बताया ना वैसे ऑफिस ऑफिस में बताएगा मैं तेरे को ढूंढ निकाल के देता हूँ। ये क्या, ये सारी चीजें क्या है ना, गूगल करके इतने आसानी से मिलती नहीं है। व्हेन यू रीड द एक्चुअल सोर्स कोड ना, तभी आपको ये समझ में आता है। और मैं आई हैव चेक दैट, आई हैव क्रिएटेड एग्जांपल आल्सो वे बैक, क्योंकि है ना आई मैं लिख लेता हूँ इसको, क्या टेम्पलेट बोलते हैं सभी से, टेम्पलेट, डायनेमिक टेम्पलेट यूआरएल नहीं, इसको क्या इतना भी, इफ नॉट और लॉजिक। एक हमको असाइनमेंट मिला, मुझे तो नहीं मिला पर बाकी 4 लोगों को मिला असाइनमेंट, एक मैनेजर ने, उसने, मैं आपको फोन किया था ना सर, हाँ एरे का, उसके आगे का बनाया मैंने, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ और उसमें क्या है ना, अभी ग्रिड बन रही है, कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं किया है, अभी अपने हाथ से बनाना है, डेटा लाना है, फेच करना है, ग्रिड बनाना है। ऊपर में सर्च है, अब सर्च कैसा है ना,
एक इनपुट बॉक्स है, वहाँ पे सर्च करोगे तो सर, वो तो सर का एग्जांपल है, वो अपने पास डॉक में। उनको कैसे चाहिए था कि जैसे मैं टाइप करूँगा वैसे सर्च नहीं होना चाहिए। पहले मैं लिखूंगा, बटन को क्लिक करूँगा, एनजी क्लिक पे सर्च चाहिए था, वो मैंने बनाया। अब उसका नेक्स्ट वर्जन क्या है कि बहुत सारे डेटा है ना कैटेगरी वाइज, तो ड्रॉप डाउन में लगा रहेगा। ड्रॉप डाउन को मैं सिलेक्ट करूंगा तो उस बेस पे पहले फिल्टर होना चाहिए, फिर इनपुट में लिखूंगा, क्लिक करूंगा, फिर वो। फिर आएगा। तो अभी इसके लिए आप क्या करोगे, मेरे को बता सकते हो क्या? आप लोग क्या किया तूने? देखो सर, मैंने अभी ड्रॉप डाउन वाला तो मैं अभी करने वाला हूँ ट्राई। क्लिक वाला मैंने किया। क्लिक वाले में मैंने क्या किया ना सर, अपडेट मॉडल। नहीं नहीं, कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, विदाउट फंक्शन की होता है वो। हाँ, अपडेट मॉडल में तुम है ना ऑन ब्लर और ऑन इवेंट लिख सकते हो उसमें। एनजी क्लिक पे मैंने क्या किया ना, मैंने जहाँ पे हम लोग रिपीट मार रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने फिल्टर लिखा, कोलन लिखा और एक फिल्टर का नाम लिखा, और ऊपर जो क्लिक लिखा है ना उस पे मैंने वो एनजी क्या मॉडल नाम? पास किया। एंगुलर जेएस में मैं एंगुलर लिखा था जेएस। इसलिए पूछ रहा था कि अगर ये सर्च करायचं तर त्या फिल्टर यूज करतात. कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाने वाला, सर को दिखाने वाला था कि मैंने सही किया है। सर वीडियो पढ़ अभी क्या हो गया बताइए, तो 4-5 जो बंदे हैं ना, सब वीडियो पढ़ के उनको लगा कि उनको आ जाएगा, पर जब उनको कंट्रोलर भी नहीं लिखना आ रहा है, ये भी तो फ्रस्ट्रेट हो गए पूरा। इतना अरे तूने फ्रस्ट्रेट हो मेरे गया यहाँ ना, नहीं भेजा? इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बोला तुम लोग, बोला अपने आप गोड़ गैर समझ मध्ये आले। गोविंद क्या बोला, गोविंद जाके उनको टॉन्ट मार के इतना वापस। हाँ नहीं नहीं, इनको सब आते हैं, बोले इनको कुछ बताओ। उनको लग रहा है कि बहुत इजी है, किसी सीनियर को पूछ के वो डेटा बेटा तो लेके आए, लेकिन ये छोटे छोटे चीजों में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि वो वीडियो पढ़ के या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उनको कब से समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मॅडम व्हॉट पासवर्ड चेंज करायचा, मॅडम पासवर्ड चेंज करायचा। पासवर्ड किती दिवसानंतर येतं? 1907 कर. फक्त न्यूमेरिकच आहे का? quick@1906 असेल, 1907 कर. तू किती दिवसानंतर ऑन करतोय? मी आता ऍक्च्युली फॉरवर्ड करतो, नाही मी मध्ये आणलंच नाही ना। आज म्हणलं टेस्ट वगैरे होते ना, मी आधीच लॅपटॉप घेऊन आलो, पण मैं एक तो स्कूल में जाना था बच्ची को, पेरेंट्स मीटिंग था, दूसरा मुझे डीडी बनाना थे, उसमें मेरे को बहुत टाइम। जी स्विच भी नहीं है। अरे बहुत, इसको कुछ तो भी है ना, एक स्पेशल नाम है, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। एंगुलर ने ये स्पेसिफिकली जो तेरा एग्जांपल दिया ना, उसी के लिए एंगुलर ने एक स्पेसिफिक चीज निकाली है। SRC NG सीक्रेट नहीं, मुस्टैक कीवर्ड्स के अंदर आना चाहिए वो। आई विल पॉज दिस।